Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 8 on digital logic. We are discussing the MCQs on the simplification of Boolean expression. That is very important topic with respect to the competitive exam of computer science students. We have done so many MCQs in lecture 5, 6 and 7 on the simplification of Boolean expression. In first 4 lecture we have discussed laws of Boolean expression and K-map, gate related MCQs on K-map, and as well as we have done SOAP and POS form. SOAP और POS form भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now in this lecture we are continuing the MCQ practice on simplification of Boolean expression. So you can watch the playlist of digital logic at Smart Study channel. Smart Study channel के ऊपर आप Boolean expression की या डिजिटल लॉजिक की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. नाउ मूव टू अवर लेक्चर टू कंटिन्यू अवर MCQ प्रैक्टिस. This is our question. This is our question number 21. This is our question number 21, and we are discussing this question in the MCQ practice of Boolean expression. Now here we have given y dash z dash plus x dash z dash plus x bar y bar. These are the complements of this term and we have to simplify it. हमें सिंप्लीफाई करना और बताना है कि इनके इन 4 ऑप्शंस में से ये किसके जैसा है. नाउ वी आर टेकिंग द SOAP form. We are taking the SOAP form. We will convert it into the SOAP form. Sum of product. Sum of product terms के अंदर इसको convert करके देखते हैं. Can we get the answer? Now here in this term we have only 2 literals y and z. If we have 2 literals then we have to make it 3 literals. तो हम यहाँ पे करते हैं y dash z dash, हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Because if we multiply anything by 1 then it will be सेम, वो आपका सेम ही आएगा. सो वी कैन डू इट, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं. सिमिलरली इन दिस टर्म देयर इज नो वाई नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. प्लस हम क्या करेंगे, सिमिलरली इन द थर्ड टर्म देयर इज नो जेड, सो वी विल मेक जेड बाय मल्टीप्लाइंग 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल डू y bar z bar, then this one can be written as x plus x bar. We know that if we are doing ORing between a literal with its complement then it will be 1 always. तो ये आपका 1 ही होगा. so we can write at x plus x dash in with respect to 1 की जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं. now x bar z bar, now we don't have y here, so we will write here y plus y bar. Now plus here there is no z, so we will write x bar y bar. तो हम 1 की जगह पर क्या रिप्लेस कर देते हैं, z और z बार को रिप्लेस कर देते हैं. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, देन वी गेट x y बार z बार प्लस x बार y बार z बार प्लस नाउ x बार y z बार, x बार y z बार plus x bar z bar y bar. So we can write it as x bar y bar z bar, we can write it like this. plus यहाँ पर क्या हो जाएगा, x bar y bar z plus x bar y bar and z bar, x bar y bar and z bar. Now there are some repeating terms, so we can combine them. हम उनको combine कर लेंगे. Now this term x bar y bar z bar, there is also x bar y bar z bar and there is also x bar y bar z bar. So we have to write it only once. So हम यहाँ पे एक बार ही इसको लिखेंगे x बार y बार and z बार प्लस now we have x y बार z बार. Can we have anything here? हम यहाँ पर है इसके जैसा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x y बार z बार को एज इट इज़ लिख देंगे. प्लस तो हमने ये टर्म भी लिख ली है. नाउ वी कैन राइट एट x बार y बार z बार प्लस ये टर्म भी लिख ली. तो इसके बाद आपके पास ये टर्म बचती है x बार y बार एंड z. नाउ यू कैन सी आवर फाइनल आंसर इज दिस, हमारा फाइनल आंसर ये आया है. नाउ चेक इट इन टू द ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर चेक करते हैं कैन वी हैव दिस टर्म आल्सो इन द ऑप्शंस.
वी हैव एक्स बार वाई बार जेड बार, हमारे पास एक्स बार वाई बार जेड बार है, तो देर इज एक्स बार वाई बार जेड बार, सो दिस इज प्रेजेंट हेयर इन डी ऑप्शन. एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, it is also present in D option. X bar y z bar, x bar y z bar, this is also present, and x bar y bar z, x bar y bar z is also present in D option. So our correct answer is D. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका D. Now move to the next question. This is your question number 22. We have a boolean expression. हमारे पास एक boolean expression दे रखा है ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस. नाउ हेयर दिस इज समथिंग रॉन्ग रिटर्न, यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा इनके बीच में. दीज आर टू सेपरेट टर्म्स एंड प्लस इज इन बिटवीन दैम, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी बार. नाउ टेकिंग कॉमन्स, कॉमन हम लेने की कोशिश करते हैं. नाउ वी कैन टेक कॉमन ए बी डी हेयर एंड ए, sorry, here b bar is there, so we will take a c and d, a c and d, these are present in these two first term, so we will take a c d common and we have b plus b bar here. Now in the second we have a b, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं आपका a यहाँ पर प्रेजेंट है c and d bar, c d bar, so we will take a c d bar common from these two terms and we will get b plus b bar from here also. Now this term is equal to 1, ये आपकी 1 होगी, this term is also equal to 1. How? If we take the OR operation between a literal and its complement, then it will always be 1. तो ये आपका हमेशा 1 होता है and this is called as inverse law, ये आपका inverse law है, you have to remember it. तो आपका क्या आएगा, ए सी डी, ये 1 हो जाएगा प्लस नाउ ए सी डी बार. नाउ इन दिस टू टर्म वी हैव ए कॉमन टर्म ए सी, सो ए सी विल बी कॉमन, यू हैव डी प्लस डी बार, तो आपके पास डी प्लस डी बार आ गया. नाउ डी प्लस डी बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इनवर्स लॉ. किसी भी लिटरल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और अगर कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा. सो हेयर वी विल गेट ए सी, हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी. एंड नाउ इन द ऑप्शन B is there which is answer AC, तो ये इसको सिंप्लीफाई करने पर भी अपने को क्या मिला, AC मिला. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ यू कैन डू इट आल्सो बाय के मैप, के मैप के द्वारा भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, नाउ वी हैव t इज इक्वल टू x प्लस वाई and x plus y bar and x bar plus y. Now this question can be done by the simply k map, k map के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं, बड़े इजीली हो जाएगा ये. Now make the k map, k map को बनाते हैं. You have to choose yourself कि आप कौन से मेथड से इसको सोल्व करना चाहते हैं. either you can solve by k map or you can solve by the Boolean's law. Now only two literals are there, so we will put here x and y. This is your product of sum, product of sum है, यानी sum का हमने product कर रखा है. यहाँ पे ये sum है, this is also a sum, this is also a sum, so this is product of sum. हमने sums की क्या कर रखी है, product कर रखी है. so we will take here 0 1 and 0 1. now sum of product के अंदर जो terms होती हैं that are called as max term, ये आपकी क्या है, max term है. और मैक्स टर्म को के मैप के अंदर आप किस प्रकार से लिखते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लुकिंग एट द के मैप, आपको कहाँ पे क्या, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो एक्स इज 1 हेयर एंड वाई इज आल्सो 1. सो वी विल लुक इन द के मैप in which block x and y both are 1. so in this x is 1 and in this y is 1, so this will be 1 here 0 here. तो हम क्या लिखेंगे, मैक्स टर्म के लिए के मैप के अंदर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. वी विल रिप्रेजेंट द मैक्स टर्म इन द के मैप बाय 0. नाउ इन द सेकंड टर्म x इज 1 एंड y बार मीन्स दैट इज 0. y बार का मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है. सो x इज 1 इन दिस रो एंड y इज 0 इन दिस कॉलन, सो वी विल हैव 0 हेयर, हमें यहाँ पे 0 पुट करनी है.
नाउ एक्स बार का मतलब क्या है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 हेयर एंड वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू 1. नाउ लुक वेयर एक्स इज 0 इन दिस रो एंड वाई इज 1 in this colon, so we will put 0 here. Now we will do the पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग किस प्रकार से होगी आपकी, जो आपके नेबरिंग हैं उनको पेयर अप कर देंगे. एवरी मैक्स टर्म शुड बी पेयर्ड. नाउ वी विल टेक वन बाय वन. नाउ टेकिंग दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर देखते हैं x इज इक्वल टू 1 हेयर एंड y इज इक्वल टू 0 हेयर. नाउ इसके ब्लॉक, इस पेयर के दूसरे ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं. नाउ दिस इज द सेकंड ब्लॉक ऑफ दिस पेयर. इसके अंदर आपका क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज y इज इक्वल टू 1 हेयर. सो नाउ चेक, x इज नॉट चेंजिंग, x आपका 1 ही रहा बट y इज चेंजिंग. सो वी विल नॉट टेक y, वी विल टेक x. और x की वैल्यू क्या है, 1 है, सो वी विल टेक x ओनली. तो हम क्या लेंगे, x ही लेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डू पॉज फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि ये हमारी पहली सम टर्म आ गई. नाउ इसका प्रोडक्ट लेना है दूसरी टर्म के साथ. तो दूसरी टर्म क्या आएगी आपकी. नाउ वी विल टेक दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को लेते हैं एंड चेक वन बाय वन. तो यहाँ पे क्या है, इस वाले ब्लॉक के अंदर, इन दिस ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 यूर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. नाउ इन दिस ब्लॉक, इस पेयर के इस ब्लॉक के अंदर आपका क्या है, ये ब्लॉक, इस पेयर के अंदर आपके दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है. इस ब्लॉक का हमने चेक कर लिया, इस ब्लॉक का चेक करते हैं. x इज 1 हेयर, x इज इक्वल टू 1 हेयर एंड y इज आल्सो 1, y इज आल्सो 1. नाउ चेक विच इज चेंजिंग, x इज नॉट चेंजिंग, x इज चेंजिंग, 0 to 1 हो गया, y इज नॉट चेंजिंग. सो वी विल नॉट टेक x, वी विल टेक y. हम y को लेंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू 1 है, सो वी विल टेक y. इफ़ y इज इक्वल टू 0, दोनों जगह 0 होता तो क्या लेते, y बार लेते, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों जगह पे क्या लेंगे, y लेंगे. सो वी विल प्रोडक्ट, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड सम टर्म एंड यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट कर दिया. सो बाय सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज एक्स वाई आपका आंसर आ जाएगा. सो हेयर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. यू कैन डू इट बाय द सिंपल बुलियंस ला की हेल्प से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं. नाउ डू द बुलियंस ला. एक्स प्लस वाई वी हैव, नाउ वी हैव एक्स प्लस वाई डैश, नाउ वी हैव एक्स बार प्लस वाई, वी हैव दिस. नाउ ओपनिंग ब्रैकेट्स वी विल डू, हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. कैसे ओपन करेंगे, एक्स प्लस एक्स वाई बार, फर्स्ट वी आर डूइंग दिस. नाउ प्लस वाई एक्स प्लस वाई बार, ये हमारी पहली ओपनिंग हो गई ब्रैकेट की, एक्स बार प्लस वाई. पहले इसको सोल्व कर लेते हैं. एक्स प्लस एक्स, दिस विल बी एक्स प्लस एक्स वाई बार, दिस इज एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0, आपका क्या हो जाएगा 0. 0 क्यों हुआ, इफ़ यू आर टेकिंग द एंड बिटवीन two literals, one is x and other is complement of x, then it will always be equal to 0. This is your inverse law. ये क्या है, inverse law है. Now this is 0, your now you can take the यहाँ पे आपकी ये वाली टर्म आप एज इट इज रख लें. नाउ बाय x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस वाई बार, नाउ प्लस एक्स वाई एंड यू हैव एक्स बार प्लस वाई, यू हैव दिस. Now what you can do, we can do something more about the Boolean's law. Now what is this term, this term is equal to 1. if you oring anything with 1, अगर आप किसी का भी और करते हैं 1 के साथ, then you will get 1, आपको हमेशा 1 मिलेगा. so you will x, इसका क्या हो गया 1, so this is 1 plus x y. now this is your x bar plus y. now what we can do, we can take the x common from these two. तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, that will be, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया x को, x कॉमन आया 1 प्लस वाई एंड दिस इज योर x बार प्लस वाई. नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 1, ये आपकी क्या हो गई 1. नाउ दिस इज x एंड x बार y प्लस वाई. नाउ अगेन टेकिंग द opening the bracket x dash plus x y,
नाउ एक्स एक्स डैश प्लस एक्स वाई, नाउ दिस टर्म इज जीरो, ये आपकी क्या हो जाएगी जीरो, एंड यू हैव रिमेनिंग एक्स वाई। दो बाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियंस ला यू गेट एक्स वाई, और के मैप से भी हमने सोल्व किया था तो क्या आया था एक्स वाई। सो अवर आंसर विल बी सी हेयर, सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू वेदर यू वांट टू यूज़ द के मैप और यू वांट टू डू बाय द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन लाज के द्वारा भी आप कर सकते हैं और के मैप के द्वारा भी आप कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे वहाँ से आप कर सकते हैं, बट के मैप गिव यू एक्यूरेट आंसर। बुलियन लाज के अंदर आपसे मिस्टेक हो सकती है, कुछ लाज आप भूल सकते हो, बट के मैप विल ऑलवेज गिव यू ए करेक्ट आंसर। के मैप से आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज डैम श्योर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is question number 24. Here this term are given a plus b plus c. Now you can see that this is plus term, so this is your sum, ये क्या है sum, and these are product। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपका कुछ नहीं गिवन है, यो आप मान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किसी यहाँ पे 1 into 1 प्रोडक्ट कर रखा है, तो सम किसका है, ये प्रोडक्ट्स का सम है, दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इट इज़ योर सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ योर सोप फॉर्म, ये आपकी सोप फॉर्म हो जाएगी। सो इन द ऑप्शंस दिस इज़ योर ऑप्शन ए क्या है, सम टर्म्स हैं, दीज आर सम टर्म्स, आपने टर्म्स का सम कर रखा है, इज दैट क्लियर। सो इट इज़ योर सोप फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है आपका, एंड इन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म दिस टर्म इज कॉल्ड एज मैक्स टर्म, ये आपकी क्या होंगी मैक्स टर्म, एंड इन के मैप दे विल रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, के मैप के अंदर जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप के मैप को सोल्व करना समझना चाहते हैं, यू कैन वॉच द वीडियो एट द स्मार्ट स्टडी चैनल ऑन डिजिटल लॉजिक प्लेलिस्ट के अंदर हमने के मैप को सोल्व करना बताया हुआ है, एंड वी हैव डन द सोप फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बुलियंस लॉ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिजिटल लॉजिक की प्लेलिस्ट के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है आपको, एडिशन का मतलब क्या है, लेट अस वी आर डूइंग ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज सेइंग दैट इफ वी आर ओरिंग two literals and then oring with third, we can oring in any order, हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी पहले आपने ए और बी का और किया, देन फिर उसका रिजल्ट जो आया उसके साथ सी का और कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बी और सी का और किया, फिर उसके रिजल्ट को ए के साथ और किया। सो दिस इज कॉल्ड एज योर दिस इज योर कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ये आपका क्या है एसोसिएटिव लॉ है, एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, बी प्लस सी बोथ विल बी इक्वल। सो दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ in or operation. If you do the associative law in the end operation, then it will be look like a b c. If you are ending bc then ending with a, or you are ending ab first and then ending with c, then both will be same. This is your associative law, this is your associative law in end operation, ये एंड ऑपरेशन के अंदर आपका एसोसिएटिव लॉ होगा। सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, आपका अगर आंसर देखेंगे सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये और के लिए कम्यूटेटिव लॉ है। फॉर एंड कम्यूटेटिव लॉ इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, आप किसी भी ऑर्डर के अंदर आप क्या करें प्रोडक्ट करें या एंड ऑपरेशन लगाएं तो आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। सो दिस इज योर कम्यूटेटिव लाइन एंड ऑपरेशन, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा एंड ऑपरेशन के अंदर। इज दैट क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर ए प्लस ए बार इज इक्वल ए प्लस ए विल गिव यू ए, दिस इज योर आइडम्पोटेंट लॉ, ये क्या है आइडम्पोटेंट लॉ, इसके अंदर दिस इज आइडम्पोटेंट लॉ ऑफ और ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द आइडम्पोटेंट लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन विल इज इक्वल टू ए, ये क्या है आइडम्पोटेंट लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन के लिए आपका आइडम्पोटेंट लॉ हो जाएगा।
सी वी हैव डिस्कस, सी को हमने डिस्कस कर लिया. नाउ अबाउट व्हाट इज डी. नाउ हेयर a प्लस 0 इज इक्वल टू a. दिस इज योर OR ऑपरेशन, सो दिस इज द लॉ ऑफ OR एंड दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. नाउ OR ऑपरेशन का ये आइडेंटिटी लॉ है. नाउ इफ यू आर एंडिंग विद 1, अगर किसी लिटरल को 1 के साथ एंड करते हैं, यू विल गेट द सेम लिटरल. दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन. एंड वी हैव प्रूव ऑल द लॉज. जो प्रूफ हैं इनके, प्रूफ ऑफ ऑल बूलियंस लॉ आर इन लेक्चर 1 वीडियो ऑफ डिजिटल लॉजिक प्लेलिस्ट. डिजिटल लॉजिक प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर इन सभी को प्रूव किया गया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब कम्यूटेटिव लॉ हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? ए बी को मल्टीप्लीकेशन का बताना है, यानी कि एंड ऑपरेशन का. एंड ऑपरेशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए बी को किसी भी ऑर्डर के अंदर आप एंड ऑपरेशन करें, आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ. नाउ व्हाट इज दिस? ए इंटू ए इज इक्वल टू ए. दिस इज योर एडम्पोटेंट लॉ. एडम्पोटेंट लॉ. तो ये थर्ड वाला क्या है आपका? दिस इज योर ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू ए बी सी. दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ. ये आपका एसोसिएटिव लॉ है. नाउ व्हाट इज डी? ए एंड end with 0 will give you 0. This is your null law. This is your null law. And you can watch the video of digital logic playlist. डिजिटल लॉजिक प्लेलिस्ट के अंदर आप देखें, उसके अंदर लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या कर रखे हैं? सभी बुलियंस लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है. बुलियंस लॉज आर एक्सप्लेन्ड. I recommend you to watch that video also. Now move to the next question. This is your question number 27. Do yourself. If you don't know, then first watch the video of lecture 1 digital logic playlist at Smart Study channel. Smart Study channel के ऊपर आप इसकी वीडियो को जरूर देखें. Now move to the next. Also along with this, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करने के साथ साथ आप क्या करें? इन तीनों को भी चेकआउट करें. व्हाट दे से है, इनसे यहाँ पे कौन से लॉ लग रहे हैं. तो ईच एंड एवरी यू विल डू. तो जो 27th का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ यूर एसोसिएटिव लॉ, दैट इज सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दैट इज़ यूर ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज यूर क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन है ये आपका. विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स स्टेट दैट इफ वन इनपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज 1, द आउटपुट इज इक्वल टू द अदर इनपुट. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रूल स्टेट दैट इफ वन इनपुट ऑफ एंड गेट. अगर एंड गेट की आपकी एक इनपुट क्या है? लेट इज दिस इज द एंड गेट. एंड गेट विल टेक 2 इनपुट्स. इफ एक इनपुट आपकी हमेशा क्या है? 1 है. इज ऑलवेज 1. तो आपका क्या है? क्या बोल रहा है? स्टेट दैट इफ वन इनपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज 1, देन आउटपुट इज इक्वल टू द अदर इनपुट. आउटपुट जो मिलेगी अदर इनपुट के बराबर होगी. ये कौन सा रूल स्टेट कर रहा है यहाँ पर? विच रूल इज देयर? तो आपका एक इनपुट हमेशा 1 है. सो दिस 2 ऑप्शन कैन बी देयर. यहाँ पे आपकी एक इनपुट, दोनों इनपुट आपकी सेम है. सो दिस इज नॉट योर आंसर. ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज you have to take one input as always 1, and it is given that the output is equal to the other input. जो दूसरी इनपुट है उसके बराबर आएगी, यानी कि जो दूसरी इनपुट है उसके बराबर आनी चाहिए. यहाँ पे a + 1 लिखा हुआ, दैट इज इक्वल टू 1. यहाँ पर आपका क्या लिख दिया? 1 लिख दिया. दिस इज योर करेक्ट. दिस इज योर करेक्ट. ये आपका करेक्ट है. ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है. बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वी वांट दैट द आउटपुट विल बी अदर टू द 1 से जो दूसरी आपने इनपुट दी है वो आपकी आउटपुट आनी चाहिए. सो दिस इज नॉट योर आंसर. ये आपका आंसर नहीं है.
दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जो आपकी ये स्टेटमेंट दे रखी हैं ये स्टेटमेंट्स सारी की सारी ट्रू हैं, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट वी वांट द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए कि आपने एक इनपुट क्या दी, आपने एक इनपुट 1 दी और एक इनपुट ए दी, और आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या करना चाहिए, आपको 1 + ए करेंगे देन यू विल गेट 1 ऑलवेज। अगर आप क्या करेंगे 1 × ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, यू विल गेट ए ऑलवेज। सो हमने एक इनपुट को 1 दिया, एक इनपुट हमने ए दी, और हमेरी आउटपुट क्या मिली, 1 से दूसरे वाली आउटपुट मिली, दैट इज आवर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। सो हेयर आंसर डी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, आवर आंसर विल बी दिस, ये आपका करेक्ट है। एंड अलोंग दिस ऑल दिस आर ट्रू, ये चारों की चार स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दिस इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये आपकी ट्रू है, बट ये अकॉर्डिंगली दिस 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये चारों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज ट्रू, बिकॉज वी आर एंडिंग ए इनपुट ए बाय 1 एंड वी आर गेटिंग ए, हमें दूसरी इनपुट 1 से दूसरी इनपुट आपको मिलनी चाहिए एज ए आउटपुट। So according to the question, this will be your correct answer. So D will be the answer of this question. Now move to the next question. This is your 29th question. According to De Morgan's theorem, the complement of product of variable is equal to, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कॉम्प्लीमेंट है according to De Morgan's theorem, the complement of product of variable. Now we have taken 2 variables, इनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विल बी इक्वल टू, इनको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ए बार और बी बार। नाउ दिस एंड विल कन्वर्ट इनटू सम, एंड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स, क्या है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स। नाउ चेक द आंसर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, सम कर दिया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, लेकिन ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका सम कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर, और ये आपका आंसर ही है। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स ए बार एंड बी बार, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट, दिस इज आल्सो नॉट अ ट्रू, इज दैट क्लियर। सो हेयर द आंसर विल बी बी, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी योर आंसर। So we have done 29 question. Now move to the next. This is your homework question for you. You have to do it yourself. आपको ये अपने आप से ही करना है। Do yourself, solve this yourself, and you can comment the answer of this question in the comment box. Comment box के अंदर आप इसका comment कर सकते हैं। Now students, we have done so many questions on the Boolean expression. Boolean expression के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड यू कैन वॉच द ऑल द वीडियोस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मोर एंड मोर, सो दैट द वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस can be come to you very frequently, and you can prepare for your exam surely. So if I am giving you time and I am doing something for you, then you should subscribe the channel and share the channel. It will motivate me to create more videos for you. Thank you students, have a nice day.